Hi student, I welcome you to this class. This is a lesson for students of class 9th. This is unit 7 in your books. It's a poem. The name of this poem is The Road Not Taken. It is written by Robert Frost. First of all, let us discuss the title. The Road Not Taken. It means a road, a path which you have not taken. That means you have not walked over that path. Now I'll tell you something about this poem. The poem is relevant to our life. In fact, it is very relevant to your life, and I'll suggest you कि अगर आप एक बार ध्यान से इस पोएम को समझ लेंगे तो आपको ये फील होगा कि ये आपकी लाइफ से कितनी ज्यादा रिलेट करती है. Right now, your present situation is such that you can exactly relate to this poem. Basically, in this poem, the poet says that he was faced with the option of two paths in the woods. एक बार ये poet इन woods में, इन जंगलों में घूमने गए थे और वहां पर उनके रास्ते में क्या हुआ? दो रास्ते आ गए. He had two options. This is similar to the career options we have in life, and we have to choose one out of them. इन दो रास्तों से पोएट हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि सिमिलरली आप सबकी जिंदगी में भी अभी ऐसा टाइम आया हुआ है, आप ऐसे मुकाम पर हैं जब आपके रास्ते में भी दो या फिर बहुत सारे पाथ्स हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे रास्ते हैं अपना करियर चूज करने के लिए, और आपको उनमें से कोई भी एक करियर चूज करना है. तो यहां पर ये जो रोड्स हैं, ये जो पाथ्स हैं, This implies the options which a person has in life. जिंदगी में बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे सामने बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं और हमें उनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करनी होती है. सो वी लुक आउट कि कौन सी इजियर ऑप्शन है, कौन सा रास्ता ज्यादा आसान है, किस पे हमें ज्यादा अच्छी चीजें मिलेंगी, क्या ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, और हम वो वाला ऑप्शन चूज करने की सोचते हैं. और यहाँ पर पोएट ने भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया है. सो लेट अस बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस सी द टॉपिक्स व्हिच वी विल कवर हियर. आई टेल यू अबाउट द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, देन आई विल गिव यू एन इंट्रोडक्शन टू द पोएम. दैट विल बी फॉलोड बाय द पोएम, explanation and discussion of the literary devices. Then we'll have a summary followed by the question and answers. So first of all, the poet Robert Frost. He was born in the year 1874 in San Francisco, USA, and he died in 1963 in Boston, USA. His full name is Robert Lee Frost. He was an American poet. His work was initially published in England before it was published in America. So, before being famous in his own country, he got fame in England. And after that, his works were subsequently published in America. He is one of the most popular and respected American poets of the 20th century. Now, Robert Frost is very famous. He is most respected American poets of the 20th century. Frost received 4 Pulitzer Prizes for poetry. इन्हें 4 बार Pulitzer Prizes भी दिए गए हैं. He was awarded the Congressional Gold Medal in 1960 for his poetic works. And on July 22, 1961, Frost was named the Poet Laureate of Vermont. Vermont is also a place in America, और इस जगह पर इन्हें Poet Laureate का खिताब भी दिया गया था. These are some of the awards and honors given to Robert Frost. Now I'll give you a brief introduction of this poem and the purpose why it is important for us. In this poem, the poet talks about a choice he has to make between two roads. The poet reaches a point where he has two roads out of which he has to choose any one. Now, आप दोनों रास्तों पे नहीं चल सकते, आपको इन दोनों में से कोई भी एक रास्ता चूज करना है. And that is what happened with the poet also. Here the road is compared to the different career options we face in our life and have to choose any one. Now similarly, we can compare this road to the career options which we have in life. आप ये सोचिए कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं
एंड ये जो रास्ते हैं ये अलग अलग करियर ऑप्शंस हैं जो आपके सामने आएंगी वंस you will complete class 10th, and you have to choose any one out of these career options. The poet wants to convey an important message to us. Now I told you this poem is very relevant, it is very important. क्या मैसेज ये पोएम हमें दे रही है, क्यों हम इस पोएम को पढ़ रहे हैं? Our future depends on our present. The career option we choose today will determine what we become tomorrow, and we must be very careful as we do not get the privilege to go back on the option we have once left. Now this poem is important. हमें एक ही बार मौका मिलता है अपना करियर चूज करने का, अपने करियर में ऑप्शन को सिलेक्ट करने का, और फिर क्या होता है, हम उसी रास्ते पर आगे आगे चलते जाते हैं. पहले +2 करते हैं, उसके बाद बैचलर्स करते हैं, उसके बाद मास्टर्स करते हैं, उसके बाद डॉक्टरेट करते हैं. बट हमें ये ऑप्शन, ये फैसिलिटी, ये प्रिविलेज नहीं मिलती कि हम अपना रास्ता बदल के कोई और ऑप्शन सिलेक्ट कर लें. इसीलिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान से अपनी ऑप्शन सिलेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज आप फ्यूचर में क्या बनेंगे वो इसी चीज पे डिपेंड करता है कि आज आप किस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं. एंड दिस इज द मैसेज विच द पोएट टेल्स अस इन दिस पोएम. दैट इज व्हाई आई से दैट दिस पोएम इज रेलेवेंट, वेरी वेरी रेलेवेंट टू योर प्रेजेंट सिचुएशन. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डिफरेंट करियर ऑप्शंस लिखी हैं. आप डॉक्टर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं. आप में से कई स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग चूज कर सकते हैं, कोई आर्टिस्ट बन सकता है जैसे कि सिंगर या पेंटर, कोई कंपनी सेक्रेटरी ज्वाइन कर लेता है, या फिर कोई जर्नलिज्म में जा सकता है. लेकिन इस पोएम से आपको पोएट यही बताना चाहते हैं कि जो भी स्ट्रीम आप एक बार चूज कर लेंगे, आप फर्दर एंड फर्दर उसी में आगे पढ़ाई करेंगे. आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आप अपना करियर पाथ चेंज करके कोई और ऑल्टरनेटिव करियर पाथ चूज कर ले. इसलिए वंस यू आर चूजिंग दिस करियर ऑप्शन you have to be very careful. Now let us begin reading the poem. I'll explain it to you and we'll discuss the literary devices also. The first stanza. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Now first of all, let us see the meanings. Diverged means go separate ways. दो रास्ते, अलग अलग दो रास्ते, that is diverged. Yellow wood here means that the forest is full of yellow colored leaves in the season of autumn. जब autumn का मौसम होता है तो सारे जो पत्ते होते हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं. That is what the poet is saying when he says yellow wood. तो पूरा जो फॉरेस्ट था वो येलो कलर का हो गया था because it was the season of autumn. Now bent means it curved. रास्ते में एक मोड़ था. And undergrowth means a dense growth of trees. बहुत सारे घने घने पेड़ लगे हुए थे. In the first line, the poet is giving a description of this forest. He says it was a yellow colored wood. It was a yellow colored forest. All the leaves had turned yellow in the season of autumn. And over there, two roads diverged. वहां पर दो रास्ते थे और वो फील करते हैं सॉरी, वो फील करते हैं कि हाय मैं दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता. ऑब्वियसली मैं एक ट्रैवलर था, मैं एक इंसान था और मैं एक ही रास्ते पर चल सकता था. और मैं बहुत देर तक खड़ा रहा और ये सोचता रहा कि मैं इन दोनों में से किस रास्ते पर जाऊं. और फिर मैंने क्या किया, मैंने नीचे झुककर एक रास्ते को देखा भी. दूर तक, जहां तक मेरी नजर जा रही थी, जहां तक उस रास्ते में एक मोड़ आ गया था और बहुत सारे घने घने पेड़ थे जिनकी वजह से आगे मुझे दिख नहीं रहा था, वहां तक मैं उस रास्ते को देखता रहा. अब यहाँ पर पोएट क्यों खड़े हैं, क्यों कंफ्यूज्ड हैं, क्यों इस रास्ते को इतनी दूर तक देख रहे हैं?
क्योंकि वो ये डिसाइड कर नहीं पा रहे कि किस रास्ते पर चलें। वो ये चाहते हैं कि वो इन दोनों ऑप्शंस में से, इन दोनों रास्तों में से जो बेटर रास्ता है उसको चूज करें। और यही डिसाइड करने के लिए वो इतना टाइम लगा रहे हैं, काफी देर तक वो खड़े रहे, यानी कि वो वॉक करके, पैदल चल के इस फॉरेस्ट में से जा रहे हैं। काफी देर तक वो यहाँ पर खड़े रहे ये सोचते हुए कि इन दोनों रास्तों में से किस रास्ते पे मुझे चलना चाहिए। Now let us see the literary devices in this stanza. सबसे पहले हम इसकी राइम स्कीम डिस्कस करते हैं। राइम स्कीम मीन्स जो लास्ट वर्ड्स है उनमें क्या म्यूजिकल इफेक्ट आ रहा है। इसकी राइम स्कीम, इनफैक्ट इस पूरी पोएम की राइम स्कीम है A B A A B. Now what do I mean by this? It means लाइन 1, 3 और 4 में एक ही साउंड रिपीट है और लाइन 2 और 5 में दूसरा साउंड रिपीट है। देखते हैं, लाइन 1 वुड, लाइन 3 स्टूड, लाइन 4 कुड। तो ये तीनों आपस में राइम कर रहे हैं, इसे हम कह देते हैं ए। नाउ लेट अस सी लाइन 2 बोथ एंड लाइन 5 ग्रोथ। तो ये दोनों आपस में राइम कर रहे हैं, इनको हम कह देते हैं बी। So the rhyme scheme comes out to be A B A A B. The next literary device is visual imagery. Now what is visual imagery? आपके माइंड में जब एक सीन सेट हो जाता है, आप विजुअलाइज कर सकते हैं इस पोएम की सेटिंग को, इस सीन को। येलो कलर के पत्ते हैं, फॉरेस्ट है, बहुत घने घने पेड़ हैं और वहां पर 2 रास्ते हैं। So this is the setting of this place. This is the scene where this poet is standing right now. So he has created this visual imagery in your mind. This is the literary device of visual imagery. The next one is metaphor. इस पोएम में एक मेटाफर यूज हो रहा है and it is also an extended metaphor. एक्सटेंडेड मेटाफोर मीन्स यही जो मेटाफोर है ये पूरी पोएम में चलता जाता है। अब पहले मैं आपको ये बता दूं मेटाफोर होता क्या है। जब आप कोई 2 चीजों की किसी एक क्वालिटी को आपस में कंपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मेटाफोर। अब यहाँ पे मेटाफोर यूज हुआ है रोड्स में। रोड से पोएट ऑप्शंस को कन्वे करना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसे होता है कि एक से ज्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं और यहाँ पर वो ऑप्शंस को रोड्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर उनके रास्ते में 2 रोड्स आ गई और उन्हें कोई भी एक रोड चूज करनी थी, ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं जिनमें से हमें एक ऑप्शन चूज करनी है। सो रोड्स हैव बीन कंपेयर्ड टू ऑप्शंस इन आवर लाइफ। Now there is another literary device that is called an anaphora. Anaphora is a kind of parallelism. Parallelism का मतलब है जब आप कोई grammatical effect use करते हैं poetry में, and anaphora is when you begin the consecutive sentences with the same word. तो यहाँ पर लाइन 2, 3 और 4 begin हो रही हैं and के साथ. So this is the literary device of anaphora.